Hello class, welcome back. Welcome back to your science class. So kids, up to now we have done, here we have completed the chapter 2. Chapter 2, that is component of food, we have completed. So today we are going to do a quick recall of the things that we have learned in this chapter and then we will move ahead with the chapter. ठीक है, उसके बाद हम chapter से अब we will move toward the third chapter. Okay, now component of food. Here in this chapter we have found out that what are the nutrients? Nutrients are the substances that provide the nourishment to the body. What are nutrients? Nutrients are those substances that provide nourishment to our body. So the substance that provide the nourishment to our body are termed as nutrient. Okay, we call it as nutrient. So nutrients are divided into mainly the major 5 parts, that is carbohydrate, and protein, fats, vitamin, mineral and roughage. ठीक है, these are what? These are the basic component. अच्छा, अब इसमें roughage और water क्या है? Additional component है. Roughage और water, what are the roughage and water? Roughage and water are the additional component. Okay. Okay. Now, so about carbohydrate, we have read that the carbohydrates are the energy giving compound. There may be simple carbohydrate or complex carbohydrate. Carbohydrate can be of two types, simple or complex. ठीक है, so simple carbohydrate provide instant energy are soluble in water like sugar. तो simple carbohydrate जैसे कि sugar, they provide what? They provide the instant energy. हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, so they provide the instant energy, and also they are soluble in water. These are soluble in water. Whereas complex carbohydrate are insoluble compound like starch. Starch की तरह होते हैं, they are insoluble in water. Water में ये क्या नहीं होते, ये soluble नहीं होते हैं. ठीक है. Next is fat. Now, these are what? These are the very high energy giving compound after carbohydrate. Fats are what? Very high energy giving compound. They produce greater amount of energy as compared to carbohydrate. कार्ब्स के मुकाबले फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. फैट्स आर अवेलेबल इन ऑयल रिच फूड. फैट अवेलेबल होता है ऑयल रिच फूड में. ठीक है. देन प्रोटीन, यू नो दैट प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड. They help in the growth of the body, and requirement of the protein depend on the age, sex, body or weight of the person. अच्छा, vitamin, these are the organic substances that protect the body from diseases. These are what? These are the organic substance, and what these substance do? They protect the body from different diseases. अलग अलग diseases से they protect our body. ठीक है, तो कुछ जो सम विटामिन आर देयर जो कि होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है, सम विटामिन आर द वाटर सॉल्युबल एंड द अदर आर फैट सॉल्युबल. सम विटामिन आर वाटर सॉल्युबल एंड अदर आर फैट सॉल्युबल विटामिन. ओके. अच्छा, fine. Now after all these things, next is we have learned the nutrient rich food we were about here. So here we know that nutrients and the food. So the carbohydrate, the food in which it is found are the fruits, corn, rice, wheat, bread and potato. Fats are found in butter, ghee, oats and egg. Protein, soya bean, pulses, peas, groundnut, meat, egg, fish and milk. ठीक है, these are the places where pulses are found. Next is what? Vitamin. It is found in papaya, mango, milk,
green vegetable, cereals, etc. सो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट, कॉर्न, राइस पाया जाता है। फैट में बटर, घी, एग पाया जा रहा है। प्रोटीन में सोयाबीन, पल्सेस, पीस, ये सारी चीजें। विटामिन पाया जाता है पपाया, मैंगो, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल, इन जगहों पे। नाउ सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन। ठीक है, वी नो दैट डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं अगर बॉडी में विटामिन ना हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज क्या है विटामिन के हमारे शरीर में। कौन से डिफरेंट सोर्स हमारे शरीर में विटामिन के। ओके, सी। सो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए सोर्स होता है पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, स्पिनच, है ना। विटामिन ए का ग्रेट सोर्स होता है स्पिनच, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। अब नाउ व्हाई विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट। सी, विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ आईज एंड स्किन। विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ आईज एंड स्किन। देखो डेफिशिएंसी डिजीजेस जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, डेफिशिएंसी डिजीजेस में हमने पढ़ा था दैट डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन की कमी से हो जाती है। विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। अच्छा, अब नीचे है जो विटामिन B1, B2, B12, ये सारे B1, B2 एंड B12, इनको साथ में वी कैन ऑल्सो कॉल बी कॉम्प्लेक्स। इनको साथ में हम कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये कहाँ पाए जा रहे हैं? मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल, पीज, एग, सीरियल, टोमेटोज में ये पाए जाते हैं। अब ये जो विटामिन बी होता है उनका क्या फंक्शन है? टू मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द नर्व्स, टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल इन द बोन मैरो। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है? टू मेंटेन द ग्रोथ, फर्स्ट इज व्हाट? टू मेंटेन द ग्रोथ। सबसे पहला फंक्शन क्या है? ग्रोथ को मेंटेन करना। ठीक है, जो बॉडी में जो ग्रोथ है, ग्रोथ को मेंटेन करना, बॉडी प्रॉपरली ग्रो करे इसके लिए। और नेक्स्ट इज टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का फंक्शन मतलब नर्व सेल अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए विटामिन बी इज इम्पोर्टेंट। And after that, vitamin B12 is used to produce the what? To produce blood cell in the bone marrow. Blood cells आती रहे bone marrow में, तो इसके लिए भी B12 इम्पोर्टेंट है। और विटामिन बी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? टेल मी विच डिजीज? यस, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से हमारी बॉडी सफर कर सकती है एक डिजीज जिसका नाम है बेरी बेरी। Okay, now moving ahead, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो अभी देखो कोरोना टाइम में आप विटामिन सी का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया जा रहा है कि विटामिन सी लिया जाए, विटामिन सी लो। ठीक है, अपने डाइट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाओ। इसीलिए आप बाहर मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे ऑरेंजेस जो हैं वो बहुत महंगे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑरेंजेस क्यों महंगे हैं, ऐसा क्यों सिचुएशन बनी हुई है? क्योंकि ये देखो, विटामिन सी हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। तो विटामिन सी क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को डिजीजेस से, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और मदद करता है कि हम क्या करें, डिजीजेस से सुरक्षित रहें। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी।
अभी देखो सोर्स क्या है विटामिन सी का। विटामिन सी का ग्रेट सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन सी के सोर्स होते हैं। जैसे आंवला, आंवला इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। देन ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज आर द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट मतलब ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारे क्या हैं? विटामिन सी के, दे आर द ग्रेट सोर्स। सो विट सी कि क्यों हम किस में हमारी मदद करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द मैनी डिजीजेस। इट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द मैनी डिजीजेस। अभी देखो विटामिन सी की जो टैबलेट अभी मार्केट में आ रही है उसके ऊपर आप देखोगे तो एस्कॉर्बिक एसिड लिखा रहेगा। एस्कॉर्बिक एसिड उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम, क्योंकि देखो तुमने पढ़ा कि विटामिन सी क्यों जरूरी है। विटामिन सी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से बचाता है। इस टाइम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें? इसके लिए ज़रूरी है कि हम विटामिन सी का यूज़ करें। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी। Vitamin D help our body to use calcium. See, this I have told you in online classes also. This I have told you in our online classes also. हमने वो बॉर्नविटा का एग्जाम्पल देखा था और वहाँ पे मैम ने आपको समझाया था कि विटामिन डी जो होता है ये किस में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स टू यूज द कैल्शियम फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स। हमारी मजबूत हड्डियों के लिए इट यूजेस द कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम यूज होता है। नेक्स्ट इज विटामिन ए। नेक्स्ट इज व्हाट? विटामिन ए। अगला क्या सोर्स है? विटामिन डी में क्या है? ये हमारी मदद करता है हड्डियों को, हमारे मतलब एक्चुअली जो हम खाने में जहाँ पे हम कैल्शियम लेते हैं, ये क्या करता है? उस कैल्शियम को, हमारी बॉडी को मदद करता है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इट इज फाउंड ग्रेटली इन मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, एग, इन सब जगहों पे ये यूज होता है, ठीक है। इन सब जगहों पे ये पाया जाता है। इसका सोर्स क्या है विटामिन डी का? विटामिन डी का ग्रेट सोर्स होता है मिल्क और कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल के बारे में आपको पता है, इट्स अ फिश कॉड जिसके लिवर से क्या बनता है? ऑयल बनता है। कॉड लिवर ऑयल इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ना उसके बाद देखो दीज आर द एडिशनल विटामिन। विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ई की क्या जरूरत होती है? एसेंशियल फॉर द फिटनेस एंड गुड स्किन। होल ग्रेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल और नट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नट्स में, आलमंड वगैरह में ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ये पाया जाता है विटामिन ए। और इसका मेन काम क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर it prevent the anti-aging and what it prevent the aging and it is essential for fitness and good skin। उसके लिए इसको विटामिन ई का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विट के। नाउ ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन के हमारी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड की क्लॉटिंग करने में हमारी मदद करता है विटामिन के। फाइन। अभी चलो अगला है कुछ डेफिशिएंसी डिजीज जो कि प्रोटीन से होती है, प्रोटीन की कमी से। तो फर्स्ट वन इज प्रोटीन की कमी से जो हो रही है वो है प्रोटीन की कमी से जो डिजीज हो रही है वो है क्वाशियोरकॉर, ठीक है। तो क्वाशियोरकॉर क्या है? इन चिल्ड्रन इट लीड टू स्टंटेड ग्रोथ, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। कल बताया था आपको, डिस्कलरेशन, बालों का कलर उड़ जाता है। थिनिंग लेग क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ ब्रेन भी क्या होता है? अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से, ठीक है। तो मारासमस, अब इसमें क्या होता है? बच्चा जो होगा वो एक्सट्रीमली पतला होगा,
ठीक है। वेट लॉस होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन पड़ने लगती है शरीर में, लूज फोल्ड ऑफ स्किन पड़ने लगती हैं। नाउ some diseases caused by deficiency of vitamins. Let's see the some diseases that are caused by deficiency of vitamin. These are, फर्स्ट इज विट ए की कमी से क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। विट ए की कमी से हो रहा है नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुअर विजन इन डिम लाइट, पुअर विजन इन डिम लाइट। विट बी1 से बेरी बेरी, वीकनिंग ऑफ मसल, डीजनरेशन ऑफ नर्व्स। ठीक है। विटामिन बी3 से पेलेग्रा, पेलेग्रा इज व्हाट, डायरिया और मेमोरी डिसऑर्डर होता है इसमें। विटामिन सी में स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं। विटामिन डी रिकेट, रिकेट से क्या होता है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, बिकम ब्रिटल एंड इजी ब्रेकेबल। बोन्स जो होती हैं, विटामिन डी मतलब रिकेट की कमी से क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, बोन्स कमजोर हो जाती हैं और बोन्स जो होती हैं ईजिली ब्रेकेबल होती हैं। बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। मतलब टूट सकती हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। ठीक है, अब ये अगला है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। तो आई गेस दिस वी हैव ऑलरेडी वी हैव डन। विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल हमने शायद कर लिया है, पहले ही हमने ये कर लिया है। ठीक है, विटामिन और मिनरल हमने कर लिया है। नाउ लेट्स रिवाइज इट वंस। देखो कैल्शियम, कैल्शियम से क्या हो रहा है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। यहाँ पे डिजीजेस का नाम दिया है बट दिस वी डोंट हैव टू स्टडी। तो वीक बोन्स होती है और टूथ डिके होता है कैल्शियम से। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, आयरन। आयरन एनेमिक बनाता है। ठीक है, आयरन क्या करता है, एनेमिक बनाता है। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, पेलनेस, रिड्यूस ग्रोथ, वीकनेस। नेक्स्ट फ्लोरीन, वीक टीथ एंड बोन। देखो कभी भी टूथपेस्ट वगैरह का एडवर्टीजमेंट देखोगे तो देयर यू विल फाइंड कि वहां पे फ्लोरीन दे यूज। ठीक है, दे यूज द फ्लोरीन। फ्लोरीन वो बताते हैं कि हाँ इसमें है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ। तो अगर फ्लोरीन की कमी खाने में है तो इट विल लीड टू वीक टीथ एंड बोन। सोडियम से क्या होता है, अब सोडियम मतलब क्या, नमक। सोडियम क्लोराइड हमारा नमक होता है। तो सोडियम की कमी से क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और वीकनेस। एंड देन फाइनली आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो रहा है, गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, पुअर ग्रोथ इन इन्फेंसी एंड मेंटल रिटार्डेशन। मतलब आयोडीन की कमी से मेंटल रिटार्डेशन तक की प्रॉब्लम आ सकती है। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। नाउ क्लास, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वी हैव टू नॉट द टेस्ट ऑफ प्रोटीन बट वी हैव टू टेस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, ओके, so let us start. So first one we are going to discuss is टेस्ट ऑफ स्टार्च। देखो हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो 3 मेजर पार्ट्स होते थे, हमने ये देखा कैन शुगर, शुगर एंड स्टार्च। तो यहाँ पे जो पहला टेस्ट वी आर गोइंग टू सी, तो दिस फर्स्ट टेस्ट इज अबाउट द स्टार्च। ठीक है,
Okay, so first of all we are having test of starch. So how we will take the test of starch, कैसे हम करेंगे? देखो starch test करने के लिए देखो ये because of the online class I have to show you all this thing here, because अगर स्कूल चलता तो I would have taken you to the school lab, science lab जाके हम इसको देख सकते थे। Okay. तो देखो अगर आपने टेस्ट करना है स्टार्च को टेस्ट करने के लिए व्हाट यू विल नीड एनी रॉ इंग्रेडिएंट। मतलब सपोज करो आपको किसी भी फूड आइटम पे टेस्ट करना है कि वेदर दैट फूड आइटम कंटेन स्टार्च और नॉट। सो यू विल पुट द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। what you will put the dilute iodine solution। तो स्टार्च चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू विल नीड आयोडीन सॉल्यूशन एंड इफ देयर इज एनी चेंज ऑफ द कलर, ठीक है, अगर कलर चेंज होता है और अगर ब्लू ब्लैक कलर जो होता है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो दिस गर्ल इज परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी आयोडीन की मदद से शी इज परफॉर्मिंग। सो इफ शी इज परफॉर्म आयोडीन की इफ आई हैव टू, देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आयोडीन यूज किया एंड शी इज यूजिंग अ ड्रॉपर टू पुट इट ऑन अ स्लाइस ऑफ पोटैटोज। तो व्हेन शी इज पुटिंग दिस हियर, तो ये देखो इसका कलर जो है वो चेंज होके ब्लू या ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। सो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स द स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर क्या होता है? इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है, स्टार्च मतलब कार्ब्स है। ठीक है, फिर से देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिया आपने? कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट ले लिया, सपोज करो पोटैटो ले लिया और एनीथिंग आपने कुछ भी ले लिया, ठीक है, आपने ढेर सारे फूड मटेरियल आपने ले लिए। देन व्हाट यू हैव डिड, उसके बाद आपने उसको उसके ऊपर क्या डाला? 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला उसके ऊपर, आपने 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आपने उसके ऊपर डाला। नाउ ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज, क्या कोई चेंज हुआ? अब ठीक है, अगर कोई चेंज हुआ, कलर का चेंज हुआ, अगर कलर ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लैक कलर अगर ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, दैट मीन्स कि उस फूड में क्या है, उस फूड में स्टार्च था, उस फूड में स्टार्च की मात्रा थी। ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ मूविंग अहेड, चलो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फूड आइटम। द नेक्स्ट फूड आइटम हियर इज टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अभी देखो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए व्हाट यू विल नीड, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए यू विल नीड द टू टाइप ऑफ थिंग, कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की जरूरत होगी। ठीक है, now take a small quantity of food item for testing। ठीक है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कोई भी फूड आइटम आपने ले लिया जिसको आपने टेस्ट करना है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू फूड आइटम मेक अ पेस्ट ऑफ इट। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई फूड आइटम लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसका पेस्ट बनाना होगा या पाउडर करना होगा। ठीक है, सपोज करो प्रोटीन की बात हो रही है, मैंने दाल ले लिया, ठीक है, मैंने दाल ले लिया, प्रोटीन की बात हो रही है, मैंने छोटी दाल तो सॉलिड होता है, कड़ा होता है, तो या तो मैं उसको ग्राइंड करूंगी या तो मैं उसका पेस्ट बनाऊंगी। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी
of the food item, put some this in a clean test tube and add 10 drop of water to it and shake the test tube. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल के आपने इसको शेक कर दिया. अभी क्या करना है, यूजिंग अ ड्रॉपर से यूज करके एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट डालना है, एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of test tube turn violet? अच्छा ठीक है. अगर किसी फूड आइटम का जो कलर है, अगर किसी फूड आइटम का कलर वॉयलेट होता है, ठीक है, वॉयलेट अगर हो जाता है तो व्हाट डज इट मीन? वॉयलेट होने का मतलब है वॉयलेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. अगर आप कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालते हो और कोई फूड आइटम जो होता है वो वॉयलेट हो जाता है, तो वॉयलेट मीन्स व्हाट? दैट फूड आइटम, वॉयलेट का मतलब क्या हुआ? उस फूड आइटम में क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. उस फूड आइटम में क्या है? प्रोटीन है. ठीक है, गॉट इट. नाउ मूविंग अहेड, तो मतलब क्या हुआ? स्टार्च पता करना था तो क्या किया? स्टार्च पता करना था तो हमें पता चला कि जब हमें स्टार्च पता करना है तो स्टार्च जब हमें पता करना था तो वो ब्लू ब्लैक टर्न हुआ. आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे वो ब्लू ब्लैक टर्न हुआ. फिर जब हमें पता करना था स्टार्च के बाद से, फिर जब हमें पता करना था कि जो फूड आइटम है, जो हमारा फूड आइटम है उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो प्रोटीन में हमने यूज़ किया कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा. और फिर हमें पता चला कि कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट क्या करते हैं? दे टर्न द प्रोटीन इनटू वॉयलेट कलर. फाइन. नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ दिस इज अ टेस्ट फॉर फैट. ठीक है, फैट के बारे में भी बात कर लेते. तो फैट का मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था, बट स्टिल लेट अस रीड इट. ठीक है, लेट्स रीड इट. Now let's start. Test for fats. Take a small quantity of food item, wrap it on a piece of paper and crush it. Take care that the paper doesn't tear. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? स्मॉल आइटम, फूड आइटम का कुछ ले लो. मान लो मूंगफली आपने ही ले लिया. ठीक है, आपने क्या किया? आपने सबसे पहले क्या किया? मूंगफली ले लिया. अब उसको आपने क्रश कर दिया पेपर पे. तो यू शुड बी केयरफुल दैट पेपर फटे ना. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट. और जब आप पेपर को स्प्रेड करोगे, सो डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेपर? मतलब जैसे अगर आप मूंगफली के साथ किया, आपने बादाम के साथ किया, आलमंड के साथ किया, तो वहां पे आपको ये चीजें दिखेंगी. An oily patch on paper show that the food item contains fat. Oily patch से हमें क्या पता चलता है कि जो फूड आइटम है उसमें क्या है? उसमें फैट है. तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ कार्ब्स और टेस्ट ऑफ फैट हमने किया. नाउ the food item may sometimes contain a little water also. Therefore, after you have rubbed on item on paper, let the paper dry for a while. ठीक है. If no oily patch shows up, the food item doesn't contain any fat. अगर कोई भी ऑयली पैच नहीं पड़ता है, दैट मीन्स उस फूड आइटम में किसी भी तरह का कोई भी फैट नहीं था. जैसे नारियल होता है, नारियल को जब आप पेपर से प्रेस करोगे, ठीक है, नारियल जो कच्चा नारियल होता है, मम्मा स्वीट्स में डालते हैं, तो उसको जब आप प्रेस करोगे और जब उस पेपर को हटाओगे तो वहां पे आपको यू विल सी द कलर, वहां पे आपको कलर नजर आएगा, मतलब ऑयली पैचेस नजर आएंगे. ठीक है. सो क्लास, हियर वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड चैप्टर. We have completed the second chapter and in the coming classes we are going to start the थर्ड वन. हम अब थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे. हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है.